ये बता।
Hello and good evening. Good evening and welcome to the Spirituality Good evening, and sir. Healing Group Meet. So welcome Preeti ji, welcome Kavan, Good evening. welcome Gayatri from Good Baroda. evening, Daya. Good evening, good evening. All right, so welcome to the program and let us know how are we faring in the last week. So good to see you Gayatri after some time. Yeah, good. All right, so good evening Smriti, welcome. And Tony, good evening, very good, welcome. So, how are we doing? कैसा रहा पिछला हफ्ता हमारा? Anybody who wants to share something good, bad, ugly, क्या हुआ? Breakthroughs हुए, breakdowns हुए, headaches हुए, क्या हुए? तो कोई बताना चाह रहा है? कोई शेयर करना चाह रहा है तो बता सकते हैं, अभी टाइम मिलेगा थोड़ा सा. आज कोई नए लोग हैं, पहले मैं ये देख रहा हूँ. Otherwise, what I was thinking is we will start with a recap, क्योंकि जब हमने शुरू किया था हमारा एक एजेंडा था. कितने लोगों को वो एजेंडा याद है? पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कितने लोगों को याद है कि हमने पहले प्रोग्राम में क्या किया था, क्या क्या हमारा मेन एजेंडा था, क्या क्या हमने सीखा है और हमारी इस जर्नी में कितना हम आगे बढ़े हैं. थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि हमने शायद लास्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू किया था, तो हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, एक क्वार्टर हमारे कंप्लीट कर लिया है. यस, राइट. तो कुछ लोगों ने कुछ सेशंस मिस किए होंगे, आई एम श्योर आपने कैचअप कर लिया होगा. YouTube में अपलोडेड है. तो कितने लोग YouTube में अपलोडेड वीडियोस चेक करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं? हाँ, या, ओके, गुड. So Kavan, you can also do that. Okay. Okay, sir. All these recordings are available on my YouTube channel. So whichever you want to review, which you think you have missed out, पहले के आपने अटेंड नहीं किए हैं, तो वो आपको वहाँ पे recordings मिल जाएंगी. It will give you a glimpse of what we have been doing, so you will be able to connect better, right? So today we will take you through that small little journey, and meanwhile I'm expecting more people to join in. तो presentation में चलना है या discussion में चलना है, that choice is yours, I leave it to you. Okay, but अगर और कोई ज़्यादा लोग आएंगे तो हम we will go through a presentation, otherwise we can take that through a discussion. तो discussion से कितने लोग okay हैं and कितने लोगों को presentation चाहिए? हाँ, तो Kavan is दोनों चलेगा, दोनों चलेगा. Okay, so let me check with Kavan. Kavan, you want to see some slides or you want to go through the discussion? That will be fine. क्या अच्छा हाँ रहेगा? सर, slides अच्छा रहेगा सर. दोनों discussion और slides. Okay, fine. So we will do is we will after 5 minutes I will take you through a presentation. तो हम brush through करेंगे उसको और फिर उसके ऊपर जो discussion होनी है वो हम उसके बाद take up करेंगे. Okay. So right now let me leave the session open for all of you to share at least one line कि पिछले एक हफ्ते में क्या हो रहा है, या क्या आप देख रहे हैं हो रहा है, या आप क्या चाहते हैं अगले हफ्ते में क्या हो. Because when you say something, words are very powerful, right? We know we are soul, we are energy, लेकिन सोल के अलावा हमारा माइंड जो है वो भी एनर्जी है, हमारे थॉट्स जो हैं वो भी एनर्जी हैं, और जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी एनर्जी है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट? तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे वर्ड्स में पावर है, बिल्कुल है, तो हमको किस तरीके के वर्ड्स यूज करने चाहिए. व्हेन यू से दैट वन सेंटेंस, I will get some idea about what is going on in your mind. So I'll explain you that and give you a one guru mantra. एक गुरु मंत्र दूंगा आपको कि आप जब बोलते हो कुछ तो क्या बोलना चाहिए. Alright? Okay, so who wants to go first? क्या हुआ, क्या हो रहा है, या क्या होना चाहिए, या क्या होगा, like that. Okay? So last week, present moment, next week. Who wants to share something? एक लाइन में जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, fast. Then we will summarize that, take one learning from it, and then move on. Yes, so who wants to go ahead? Paragraph नहीं चाहिए, सिर्फ एक या दो लाइन maximum. So who wants to share? Yes, Kavan. Yes, bold step. Yes, go ahead. Sir, one thing I'm observing, अगर कुछ रिफ्ट आया किसी ऑपोजिट पर्सन से तो इमीडिएटली डिसॉल्व हो रहा है सर. पहले की तरह बहुत दिन या मंथ्स टुगेदर इट यूज्ड टू बी, इवन इयर्स टुगेदर, बट अभी इमीडिएट विद इन फ्यू मिनट्स इट इज गेटिंग डिसॉल्व. और आगे वाले वही मोड पे रहते हैं, और जैसे वो लोग हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा आंख को देखते हैं तो
within no time even they will get dissolved. Their feelings also will get dissolved, like whatever that angry whatever it is negative, जैसे ही हमारा डिजॉल्व हो जाता है इमीडिएटली उसका भी डिजॉल्व हो जाता है सर, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, दिस इज वन थिंग वे एक्चुअली प्रैक्टिकली वो एक हुआ मेरे साथ. तो विद इन नो टाइम वी बोथ केम आउट. ओनली द रीजन इज दैट वो देख रहा था, वो गुस्से में स्टिल ही वाज लुकिंग एट मी, और as soon as he came to know that I'm already out of it, that episode, so तुरंत उसका भी पूरा चेंज हो गया. तो लगा कि वो एवरीथिंग इज विद इन अस. अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो लोग भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो एवरीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव विल स्टार्ट एंड एंड विद अस. Very good, Kavan. Brilliant observation and perfect way of handling a tough situation. So good, congrats. Good breakthrough. Okay. So what Kavan is actually saying is, in a way, see how the other person behaves can be changed. That his behavior can be changed by the energy or the emotions that you are sending to him. तो अगर आप उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, बेशक वो गुस्से में हो, वो देखेंगे कि भाई आप शांत हो, आप पॉजिटिव एनर्जी आप दे रहे हो, आप स्माइल के साथ उनकी बात सुन रहे हो, और उसको एक रेजोल्यूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है वो बड़ी जल्दी निकल आता है. तो आप उनके एंगर को कम कर सकते हो. तो यू कैन इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स बाय योर ओन थॉट्स एंड एनर्जी लेवल, एंड दैट इज वेरी वेरी प्रोफाउंड, Kavan. So very good, wonderful. Thank you, sir. All right, very good. And who else wants to go? And welcome Shuchi, and welcome Smriti. Yeah, yes, Preeti. Good evening, everyone. भैया द बेस्ट थिंग जो हुआ है, मैंने आपसे पूछा था सेशंस में जब शुरू हुआ था, दैट आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव. कॉन्शियसली मैं करना चाहती हूँ लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि द फैक्ट इज कि जब आपके थॉट्स में वो चीजें वापस घूम रही है, दैट मींस यू आर स्टिल स्टक विद दोस थिंग्स. क्योंकि अगर आप स्टक नहीं हो तो फिर आप मूव ऑन कर जाओगे तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगी. अब इतने टाइम से शायद मैं मेडिटेशंस भी आपकी वो भेजी हुई रेगुलर कर रही हूँ, मे बी एक दिन के गैप पे कई बार जैसे टाइम मिलता है वैसे आई कीप डूइंग. तो काफी चीजें इट इज कि अब वो चीजें माइंड में ही नहीं आती, इट इज आउट ऑफ माय माइंड. मतलब 90% ऑफ द थिंग्स आर आउट ऑफ माय माइंड. वेरी गुड, वेरी गुड. तो दैट मींस कि जो अफर्मेशंस मैं कर रही हूँ फॉरगिवनेस की, और जो आपने सेंटेंस भी बताया था दैट आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, वो भी आई कीप ऑन रिसाइटिंग. और तो उससे मुझे लगता है कि ना कुछ चीजें फॉरगिव करके, जो वही वाली बात की जो ब्रेन में आ रहा है तो वो थॉट है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे वो थॉट चल रहा है. तो वो जो चीजें नेगेटिव हुई थी लाइफ में, वो चाह रही थी कि मैं भूल जाऊं एंड फॉरगिव एंड मूव अहेड, बट वो नहीं कर पा रही थी. बट आई एम एबल टू डू दैट नाउ. परफेक्ट, ब्रिलियंट, वंडरफुल प्रीति जी, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस मैं कहूँगा, क्योंकि फॉरगिवनेस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी प्रोफाउंड. इट्स डजंट कम इजीली. लोगों को कुछ छोड़ देना, 25 साल 20 साल की रिग्रेट होती है, गुस्सा होता है, रिसेंटमेंट होता है, और कई जन्मों का संस्कार है ये. उस संस्कार से थोड़ी सी भी अगर आप नॉन अटैच हो गए या फ्रीडम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. इनफैक्ट दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मूविंग फ्रॉम द लोअर चक्रास टू द हायर चक्रास. आप अपने लोअर चक्रास जो है आपके जो रूट चक्र है, सेकल चक्र है, सोलर चक्र है, वहां से निकल के जब आप हार्ट चक्र में आएंगे, द फर्स्ट थिंग दैट इज द लैडर टू स्टेप इनटू द हार्ट चक्र इज फॉरगिवनेस. राइट? तो बहुत बढ़िया है, एंड योर जर्नी इज इनफैक्ट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट जर्नी, और आप भी जानते हैं आपकी जर्नी काफी अच्छी चल रही है. और फॉरगिवनेस वाला पड़ाव पे जब कोई आ जाता है, ऑब्वियसली यू आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू मूव टू द हायर चक्रास. तो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी लर्निंग है. तो वंडरफुल. सो अगेन lot of you can pat your back. Good job done, right? So good job, very good. Thank you. Okay, who else wants to share? और कोई शेयर करना चाह रहे हैं पिछले हफ्ते के बारे में, अगले हफ्ते में क्या इंटेंड करना चाह रहे हैं? Now I'll tell you. मेरा हुआ है. हाँ जी. हाँ, काफी गुस्से में मेरे को कभी बहुत ज्यादा आ जाता था बीच में कभी. सो मैं जब देख रही हूँ अपने आप को, नोटिस कर रही हूँ 2-3 महीने से जब से स्टार्ट हुआ है, मैं सोचती हूँ मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी, आराम से रह शांति से जाके कहीं और बैठ जाती हूँ, मन को शांत करना है करके मैं फिर 5 मिनट बाद आ जाती हूँ वापस. तो थोड़ा फर्क हुआ है गुस्से में बहुत. वेरी गुड गायत्री, एंड गुड जॉब. इतनी
इतनी जल्दी अगर आप ये लेसन सीख लेंगे तो काफी अच्छा है. करेक्ट. नाउ लेट मी टेल यू द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव इज टू ऑब्जर्व. जैसे ही आपकी अवेयरनेस में आ जाता है कि मुझे ये करना है, हाफ द जॉब इज डन. उसके बाद जैसे ही ध्यान आ जाता है उसमें, देन योर माइंड विल टेक ओवर और अदर योर इंटेलिजेंस विल टेक ओवर, और वो आपको गाइड करेगा कैसे करना. और बहुत सारे आपके पोस्ट आप देखोगे हमारे ग्रुप में, बहुत सारे लर्निंग्स आपको यहाँ मिलेंगी कि गुस्सा जो है, आज ही मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें था कि गुस्सा किसको आता है, जो अपनी मन की व्यथा को, पीड़ा को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. नहीं कर पाता है. Have a look at what is actually stopping you from expressing your pain or hurt. Okay, so True. Actually what comes to me very closely, मैं वही पोस्ट करता हूँ, because I know this is the group consciousness, the group को affect होगा ही होगा. Correct. And fear and anger is something which is very very common to all of us. Fear and anger सबसे common emotion है. तो अगर आपने इन दोनों के ऊपर अगर आपने अपनी थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली, तो यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी. राइट. सो वेरी गुड जॉब गायत्री, गुड जॉब डन. एंगर को, पर एंगर को ऊपर फोकस नहीं करना है, बिकॉज किसी का एंगर अगर नहीं होगा तो वो किस तरीके का इंसान होगा. थिंक लाइक दैट. अगर कोई इंसान है जिसके अंदर से एंगर पूरी तरह खत्म हो गया है, तो वो कैसा होगा. He will be a person who is very peaceful. Very peaceful. Gayatri, let identify yourself. गायत्री को फील करने दो. अगर किसी इंसान के अंदर से पूरा गुस्सा निकल गया तो वो कैसे बिहेव करेगा और वो कैसा होगा, उसको क्या बोलेंगे लोग, कि हमेशा एक हंसमुख इंसान है, एक पीसफुल सोल है. कोई भी इफेक्ट चीज उनको इफेक्ट नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करती है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज से दैट आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस बाय स्माइलिंग इन ऑल सिचुएशंस. तो ये सब जो है, ये अगर अंदर पकड़ोगे तो गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा. गुस्से के ऊपर फोकस करोगे तो गुस्सा बढ़ेगा. करेक्ट. तो गुस्से के ऊपर फोकस नहीं करना है, पीस के ऊपर फोकस करो, गुस्सा शांत हो जाएगा. ऑलराइट. अपसेट के ऊपर फोकस नहीं करना है, पीस के ऊपर, पावर के ऊपर. आई हैव पावर टू कंट्रोल माय इमोशंस, आई हैव पावर टू एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस. देन यू टेक ऑन दैट फर्दर. Okay. True. Very good, Gayatri. Good job done. Good improvement. Good progress. Okay. Anyone else who wants to share? पिछले 3 महीने की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग. या 3 महीने में क्या प्रोग्रेस हुआ है आपके अंदर, स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे बढ़े हो, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं. So anybody else who wants to share? Shuchi, welcome. Yeah, very good morning. Yeah. Good morning. Yeah. So I want to share. This is like from last 3 months. आपने जैसे भी बोला fear and anger. मैं पहले बहुत डरती थी regarding क्या होगा, especially about the health conditions of my family. I was always scared कि पता नहीं क्यों, शायद मैंने बचपन से बहुत बीमारियां देखी हैं, so इसलिए मेरे को हमेशा एक डर रहता था कि मेरे आसपास जो भी है वो सब ठीक रहे. That was my biggest fear every time. मुझे लगता था वो ठीक रहे, किसी को कुछ ना हो, about my husband, my kids, my other family members at home. तो अब लेकिन मेरा वो फियर निकल गया, बिकॉज आई स्टार्टेड बिलीविंग इन कि हम एक सोल है और हमें जो पीछे कर आए हैं वो हमें इस समय भुगतना ही है. सो व्हाट मोस्ट वी कैन डू इज कि हम अभी प्रेजेंट कर्मा अपने अच्छे रखें एंड बी इन ग्रैटिट्यूड, तो हम शायद कुछ उस जर्नी को इजी बना सकते हैं. तो वो फियर खत्म हो गया, उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया. दिस इज द आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो था, क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत डरती थी कि मेरे आसपास जो भी है फैमिली मेंबर्स उनको कुछ ना हो. सो दिस हैपेंड विद अगेन एज यू नो कि एक बहुत बड़ी बीमारी जब एक घर में स्टक करी हमारे घर में एक बच्चे को, तो मुझे लगा कि उस बच्चे के इस जन्म के कर्म नहीं है जो उसको इस समय भुगतने पड़ रहे हैं. ही इज कैरिंग फ्रॉम द पास्ट कर्मास. तो तब से वो चीज मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली आ गई है कि पास्ट कर्मास को हम सिर्फ बाय ग्रैटिट्यूड एंड बाय आस्किंग सॉरी हम उनको ठीक कर सकते हैं. सो दिस थिंग हैज हैपेंड वेरी स्ट्रांगली विद मी एंड आई एम अगेन वेरी थैंकफुल कि ये चीज मैंने बहुत जल्दी सीखी, नहीं तो मैं हमेशा इस फियर में रहती कि माय हस्बैंड शुड बी ऑलराइट, माय किड्स शुड बी ऑलराइट, मी शुड बी ऑलराइट. सो वन इज दिस फियर. एंगर मोर और लेस खत्म हो गया, मुझे गुस्सा नहीं आता है. पहले जैसे बहुत जल्दी गुस्सा भी आता था, मैं चिढ़ भी जाती थी. एंगर मोर और लेस, इफ आई कैन से दैट आई हैव गॉट अ विक्ट्री ऑन दैट पार्ट, कि अब गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, किसी पे भी नहीं आता है. द ओनली थिंग एज प्रीति जी सेड कि कुछ चीजें हैं जो पास्ट में हुई हैं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं कई बारी there are many people who had betrayed my trust or had done something which मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया.
बहुत सारी चीजों को मैं ये सोचती हूँ इट वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, और हम दोनों पीछे कुछ कर आए थे और हमने इस समय करना है। एंड एज शिवानी जी सेड कि उनको माफ करते चलो, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होएगा टू द नेक्स्ट जन्म। तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, बट देयर आर ओनली 1 or 2 कभी वो इंस्टेंसेस दिमाग में एकदम घूमते हैं और मुझे फिर लगता है कि नहीं, दैट वाज समथिंग इनह्यूमन एंड वो माफ करने लायक नहीं है। बट अगेन यू नो आई एम कीप ऑन सेइंग टू माई सेल्फ कि आई एम नोबडी टू फॉरगिव एनीवन। सो मैंने भी उनके साथ इससे भी बुरा कुछ ज्यादा किया था, क्योंकि मैं इस समय उनके साथ ही ये रिलेशन मेंटेन कर रही हूँ। सो यस, दिस थिंग आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। मेरे को जैसे ही वो चीज वापस याद आती है, मैं ये सोचती हूँ कि इस सोल ने उसको और भी ज्यादा दुख दिया था, तो आई हैव टू से सॉरी फर्स्ट and then forgive it and end this relationship here, क्योंकि I don't want to carry this relationship next. So yeah, I'm working on that forgiveness part, but yes, I'm very happy. मेरा वो डर चला गया है, मेरा anger almost खत्म हो गया है, and I'm being very positive now. और yes, intentions are on. I know that. Very good, Shuchi. So good job done. Thank you. Fear and anger, जैसे हम बोलते हैं अक्सर, is the most common emotion. अगर आपने इस पे ऐसे repeating again, इस पे थोड़ी सी भी अगर आपने ब्रेक थ्रू कर ली है और आगे बढ़ रहे हैं, तो योर स्पिरिचुअल जर्नी इज वाइड ओपन। तो लोअर चक्रा से निकल के हायर चक्रास की कॉन्शियसनेस में जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार, राइट। तो जस्ट एक दो समराइजेशन दूंगा जो आपने बोला, बहुत अच्छा है, वैसे आपने एक्सपीरियंशियल शेयरिंग किया। सिर्फ फियर को अगर कम करना है तो फियर का उल्टा होता है फेथ। इंस्टेड ऑफ फियर यू शुड हैव फेथ इन डिवाइन। ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा एंड फियर वर्कआउट हो जाएगा। लाइक आई सेड, एंगर के लिए आपको करना है कि आई एम ए पीसफुल सोल, तो फियर के लिए आपको बेसिकली एक ही चीज कहनी है, स्टार्ट हैविंग फेथ इन द डिवाइन, कि जो डिवाइन करेगा अच्छा ही करेगा। सरेंडर टू द डिवाइन एंड द फियर विल वैनिश। एंड मोर ओवर फॉर फैमिली पीपल, नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं कि वी लव देम सो वी वरी फॉर देम। लव एंड वरी आर टू डिफरेंट इमोशंस, right? Love is positive, worry is negative. If you love your family members, you should care for them, you should serve them, you should contribute to their lives. But worry and concern and getting panicky is all negative. So you are sending negative vibes to the family members. It will create that problem rather than solving it. तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक डिस्टिंक्शन जो है, जो आपको समझनी है इसमें, कि if you love your family, you are a caretaker, take care of them. That is the best way to send the positive healing energies to them and close family members. So you definitely have that whole atmosphere of love and care in the family. So that takes care, right? So this was very powerfully said. So fear and anger के लिए जो बताया, that is one. Second thing, हम अपनी language को अगर हम देखें, so not your part but in general, normally we live in an illusion कि हम खुश होंगे आगे चल के, जब ये हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, ये हो जाएगा काम तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो फ्यूचर में अगर हम अपने आप के हैप्पीनेस को डाल देंगे तो प्रेजेंट में आप हैप्पी नहीं हैं, मतलब, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लैंग्वेज शुड बी सच दैट यू आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस एंड यू आर यूजिंग ए पॉजिटिव लैंग्वेज। नो को यूज करना बंद कर दो। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैड टेकन ऑन। नो, नेवर, नेगेटिव वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस मत बनाओ। मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, या मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी जगह पे बोलो I will do this. क्या करने वाले हो वो बताओ। मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद स्माइल करूंगा, मैं आज के बाद नहीं डरूंगा, नहीं, मैं आज के बाद I will have more faith in the divine, I will surrender to the divine. तो ऑटोमेटिकली you are saying what you want, पॉजिटिव है और प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में नहीं है, ओके। तो क्योंकि एनर्जी वर्ल्ड में, आज ही मैं बात कर रहा था कि एनर्जी वर्ल्ड में कभी भी कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, या तो हो रहा है या हो चुका है। होगा बोलने से यू विल नेवर गेट दैट रिजल्ट। होगा मिलने से भगवान कहेंगे तथास्तु, वो होता रहेगा, आगे ही होगा, यहाँ नहीं आएगा, तो प्रेजेंट में नहीं आएगा। तो प्रेजेंट में है, यू हैव टू से आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई हैव रिसीव्ड दैट पेमेंट, दैट्स इट, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट पेमेंट, थैंक यू वेरी मच, डिवाइन विल बी डन। तो एक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। एंड अगर आप एफर्ट्स कर भी रहे हैं तो आप बोलिए आई एम पुटिंग द मैक्सिमम एफर्ट्स एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग। रिजल्ट्स आ रहे हैं, कब आ रहे बोलने की जरूरत नहीं है। बोलोगे दे विल कम इन द फ्यूचर, तो दे विल नेवर कम। तो रिजल्ट्स आर कमिंग, एफर्ट्स डाल दिए हैं, डिवाइन विल बी डन,
रिजल्ट्स आ गए हैं या आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट टेंस में आपको हमेशा एफर्मेशन बनानी है. So this is a very powerful way of living life, right? Okay, good. So very good. Shuchi, Kavan, and Preeti ji have shared. Gayatri has shared. So very good. All right. So एक चीज और शेयर करना चाहूंगी भैया. हाँ जी. मैंने ना डीके शिवानी जी की एक वीडियो देखी थी. कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी जो जन्म पत्री बनती है वो उसके पास्ट लाइफ के संस्कारों से बनती है. बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, शी वाज टेलिंग समथिंग कि शी मेट सम एस्ट्रोलॉजर एंड उन्होंने कहा कि वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं, द वे यू बिहेव एंड द वे यू एक्सेप्ट एंड फॉरगिव एंड थैंक इन दिस लाइफ. तो वो आपकी जन्म पत्री, वो आपके क्योंकि नए संस्कार आप बना रहे हो तो आपके पुराने संस्कार ऑटोमेटिकली वानिश हो जाएंगे, तो वो पत्री आपके किसी काम की नहीं रह जाती. व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग एंड सरेंडरिंग इन डिवाइन, तो सब कुछ आपका एक पॉजिटिव नोट पर ही चला जाएगा. आपका पुराना, क्योंकि आपकी पत्री जब बनी है, जब आप पैदा हुए हो, तो वो आपके पुराने संस्कारों का ब्लूप्रिंट है. तो अब हम नए संस्कार, वी आर एटलीस्ट कॉन्शियस नाउ टू मेक एंड क्रिएट न्यू संस्कार नाउ. तो वो हमारा जो पुराना कर्म है वो खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम फॉरगिव करेंगे और जब हम अपने आप को अफर्म करते रहेंगे दैट वी आर वेरी पीसफुल, वी आर काम एंड वी आर वेरी हैप्पी. तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो पुराने खत्म है वो सब खत्म हो जाएगा. जैसे एक वीडियो में मैंने उनको देखा था. बिल्कुल सही कहा आपने. लोग कहते हैं कि पत्री के अंदर ये लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा. नहीं, पत्री भी चेंज होगी with your word. What you have to understand here is one basic concept कि anything that is manifesting in your life, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, is a result of past karma plus present karma. Your destiny is always you can say a sum of past karma plus present karma. अब जो आपका ज्योतिष जो भी है, विद्या जो है, वो दिखा रही है एक पास्ट कर्मा के बेसिस पे एक प्रोजेक्शन. क्योंकि normally 2 to 3% people only will change their sanskars. You need to understand. सिर्फ 2-3 लोग हैं जो कॉन्शियस, 2-3% लोग हैं जो कॉन्शियस होकर स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हैं. 95%, 98% people are भोग योनि में चल रहे हैं. करेक्ट, उसी संस्कार में चल रहे हैं. हाँ, तो वो उस संस्कार की प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि संस्कार चेंज नहीं होगा तो ये ऐसे ही चलेगा और 98% will come true. Okay, only for 2 to 5% people who have changed that संस्कार, क्योंकि गुस्से के हिसाब से चल रहे थे, उन्होंने गुस्सा छोड़ के पीस वाला संस्कार पकड़ लिया. संस्कार वहीं रहेगा लेकिन वो एक्टिव नहीं है. Need to understand, बीज कभी खत्म नहीं होता है. संस्कार will always remain there, but you have listening to a different song now. पहले आप केवल सहगल के गाने सुन रहे थे, अब आप किसके, कोई भी बोल लो आप, जो भी नया कैरेक्टर है आजकल जो सिंगर है उसके गाने सुन रहे हो आप. तो वो कहाँ सैड सॉन्ग और ये कहाँ ढिंचा डिस्को म्यूजिक चल रहा है. तो ऑब्वियसली यू हैव चेंज योर संस्कार, मींस यू आर लिसनिंग टू अ डिफरेंट सॉन्ग. सम अदर सॉन्ग इज रनिंग योर लाइफ नाउ. तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट नहीं आएंगे, डिफरेंट रिजल्ट आएंगे. क्यों? तुम्हारे प्रेजेंट कर्मा ने ड्रास्टिकली चेंज कर लिया. तो संस्कार वही रहेंगे. कौन से संस्कार एक्टिव हैं, दैट विल डिपेंड एंड दैट विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ. तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, ज्योतिष गलत नहीं. ज्योतिष विज्ञान इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट. Only thing is for those people who do not change their sanskars, it will be 100% true. लेकिन जो संस्कार चेंज करें, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो अपने कर्मास चेंज कर रहे हैं, अपने संस्कार चेंज कर रहे हैं, उनके लिए वो वैलिड नहीं होगा. They will create some magical results. यहाँ पे कहेंगे ये दशा बहुत खराब होने वाली, उस दशा में वो it's like सचिन तेंदुलकर स्कोरिंग a double century, right? वो double century मार देंगे वो लोग. ये तो था ही नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, या उल्टा भी हो सकता है. ये तो बहुत अच्छा जाना चाहिए, पता लगा वो सड़क पे आ गया. Right? So depends on what kind of sanskars he is doing. जितना एक ट्रेडिशन बताया था वो उससे भी अगर बदतर चला गया तो obviously life is going to go for a toss. So both ways it works. So it cannot be 100% accurate, provided yes it is a prediction. You have to understand that. Forecast है, एक prediction है. It cannot be accurate. But generally if you follow that trend, it will come true. But if you work on yourself or if you degrade yourself, it's going to be bad or worse. So you have to understand the basic concepts. इक्वेशन सिर्फ बड़ी सिंपल सी है. डेस्टिनी इज इक्वल टू पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा. पास्ट कर्मा का इफेक्ट तो होगा ही होगा, इसीलिए एवरीबॉडी हु मे बी अ ग्रेट हीलर ही कैन नॉट बिकम एन अंबानी. वो उसके कर्मा उसमें नहीं है. पास्ट कर्मा के हिसाब से वो जो है वो वहीं पहुंचे, उतना ही रहेगा, उसी लिमिट में रहेगा. बट अपने उस एफर्ट्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स लेने के लिए जो उसको चाहिए, दैट पार्ट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पास्ट कर्मा. देन द प्रेजेंट कर्मा विल गिव हिम द बेस्ट रिजल्ट्स, लाइक दैट.
तो इवन इन हीलिंग वी डू द सेम थिंग. हीलिंग में हम क्या कर रहे हैं? जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहे हैं, हम चक्रास में से आपके ब्लॉक्स हटा रहे हैं. मींस व्हाट? हम आपके पास्ट कर्मा के जो डीप रूटेड संस्कार हैं उनसे आपको फ्रीडम दे रहे हैं. अब आपके प्रेजेंट कर्मा का मैक्सिमम रिजल्ट आएगा. So if I explain this, somebody say is having a deep rooted संस्कार कि I am a failure or I am a loser. Okay? ये चला आ रहा है, कई जन्मों से चला आ रहा है. तो अगर वो बोल रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मैं लूजर हूँ, यू नो, दैट इज अ संस्कार दैट ही हैज. एंड अब वो एफर्ट्स कर रहा है कुछ भी करने के, चाहे वो एग्जाम में पास होने की कोशिश कर रहा है, आईएएस बनने की कोशिश कर रहा है, बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि उसका संस्कार चला आ रहा है. बट अगर हम हीलिंग से उसके वो ब्लॉक्स हटा देते हैं, अब उसके वो संस्कार जो है उसका इफेक्ट थोड़ा सा हट गया, दैट मींस वो संस्कार शांत हो गया है, और हम उसको एक नया संस्कार या नए उसकी हीलिंग से उसके एक पावर दे रहे हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट्स इन माय लाइफ. एंड फिर वो करता है तो अब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन हीलिंग. पास्ट कर्मा से आपको फ्रीडम दे रहे हैं ताकि प्रेजेंट कर्मा के बेस्ट रिजल्ट्स आ जाएं. करेक्ट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट्स. एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड हियर बिफोर आई टेक मोर शेयरिंग, कि व्हाटएवर लाइफ यू आर एंजॉयिंग राइट नाउ, इट कुड बी योर हेल्थ. आपकी हेल्थ का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आपके वेल्थ का या जॉब का, करियर का, बिजनेस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, किसी प्रॉपर्टी डील में किस तरीके से आप अभी पोजीशनड हो. ओके, तो व्हाटएवर वेल्थ में जो भी आ सकता है आप सोच लीजिए. सिमिलरली रिलेशनशिप्स में जो लोग आपकी लाइफ में हैं या जो लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं, तो ऑल दी स्टेटस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर कर्मास. Okay, now you may be happy with it or you may not be happy with it, but that is exactly the result of the karma, which means आप जो कर्म करके आए हो उसके हिसाब से यही लाइफ थी जो आपको मिलनी चाहिए थी और वही मिली है. यूनिवर्स में कहीं कोई गलती नहीं होती है. So if you have wonderful people in your life, you have done excellent karma in the past. You have a wonderful job, you have a wonderful wealth situation, it's because of the past karma. ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, देखो कहाँ अंबानी का बेटा बन के पैदा हो गया, पोता बन के पैदा हो गया. हुआ है, वो कर्मास लेके आया है, राजयोग लेके आया है. वो अंबानी का पोता बन के ही पैदा होना था उसने, क्योंकि उसके कर्म पिछले बहुत अच्छे हैं. There are many other examples, I will not name them, they are celebrities now. So anybody who is born in Amitabh Bachchan's family, you know that he has done wonderful karma to at least enjoy that wealth part of it. But other things, again a big question mark, right? तो चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आप जो भी स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं अभी, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है आपके कर्मा का, डायरेक्ट रिजल्ट है आपके कर्मास के. तो अगर उससे आप खुश नहीं हो तो आपको क्या करना है? लोगों को ब्लेम करने से काम चलेगा नहीं. खुद को ब्लेम करने से काम चलेगा नहीं. यू हैव टू हील योर कर्मा. You have to work on आपको अपने पास्ट कर्मा को हील करना है, जो हम अभी बात कर रहे हैं. फॉरगिव करो, अपने आप को फॉरगिव करो, लोगों को फॉरगिव करो. अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट लविंग एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज एवरी सेल इन द बॉडी हैज सम इश्यूज. आपके प्रॉब्लम जो है लाइफ के, वो सारे आपके टिश्यूज में है, राइट? तो योग को फॉलो करो अपने. तो यू हैव टू अगेन लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक योरसेल्फ एंड अदर्स. सो यू विल फाइंड कि आपकी नीज की प्रॉब्लम चली गई है. आप फियर खत्म कर दो, आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी डिजीज हैज एन इमोशन बिहाइंड इट. उस इमोशन को आप हील करेंगे, आपकी बॉडी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो पैरालिसिस ही क्यों ना हो. ओके, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर वेल्थ में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं आप कंजूस बन के पैदा हुए हो क्या, या पहले आपका एक वो फीलिंग था कि मनी शुड ओनली बी स्टोर्ड. पैसे को आप सिर्फ तिजोरी में बंद करके रख रहे हो और किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे हो. हाँ, जैसे हमारे पुराने पिक्चरों में हम देखते थे, कन्हैया लाल एक मुंशी होता था, कैरेक्टर, जो पैसा आया तिजोरी में बाहर नहीं निकलता था पूरी पिक्चर में वो. हाँ, तो वो घूसखोर है या जो भी है, गलत काम करके पैसे कमा रहे हो, पैसे इकट्ठे करके रख रहे हो, तो यू आर बेसिकली नॉट हैविंग एनी फ्रीडम इन मनी. मनी के साथ अगर इफ यू डोंट लव मनी, इफ यू डोंट हैव फ्रीडम इन मनी, आप वेल्थ क्रिएट कैसे करोगे? करेक्ट? तो मिजरी में रहोगे. So you have to understand whatever is happening in your life right now in all the three major areas is a result of your karmas. उससे आप खुश हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रेटिट्यूड में रहो. उससे आप खुश नहीं हो तो ब्लेम करने की जगह या गिल्ट में जाने की जगह कर्मास को हील कीजिए, and then you will see drastic changes in the situation. Okay? तो ये था आज का थोड़ा सा ज्ञान जो मैंने स्लाइड्स के थ्रू नहीं दिया, डिस्कशन में दे दिया है. So now we are open for discussion, right? So anybody who wants to share something, free to share.
लाइफ में क्या चल रहा है, एंड लास्ट टाइम का भी थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ. अगर आपकी लाइफ में कोई भी पेन एरिया है, so look into that pain area and see what is the kind of attachment you have. जहां आप अटैचमेंट से फ्री हो जाएंगे, आपका पेन का सॉल्यूशन निकल आएगा. पेन का सॉल्यूशन तब निकलेगा when you are non attached to that situation or the person or the thing. Okay, तो more or less summarize whatever we have been discussing. जो कुछ हमने अभी पीछे डिस्कस किया उसको हमने थोड़ा सा समराइज कर दिया है और थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया मैंने. ऑलराइट, तो कितने लोगों को समझ में आया है, नहीं समझ में आया, यू कैन शेयर दैट. एनी क्वेश्चंस, फ्री टू आस्क. यस, सो हु वांट्स टू आस्क? लेट मी टेक 5 seconds break. Yeah, go ahead. जो मैंने कहा कितने लोगों को समझ में नहीं आया, पहले तो बताइए. आ गया. आ गया, वेरी गुड. ओके, so anybody else who wants to share something? Vishaka ji, welcome. Smriti, welcome. Anything you want to share? आ गया, समझ में आ गया. Ramesh ji, anything you want to share? Thank you. हाँ, गायत्री समझ में आ गया, वेरी गुड. ओके, तो कितने लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं, जैसे जिंदगी चल रही है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं? यू आर हैप्पी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Yes, So I'm you will- also happy. So when you are in happy and when you are happy and you are in gratitude, you will get more of that. You will get more things to be grateful and happy. Okay? जो आपको और gratitude में लेके आएंगे और ज़्यादा खुशी देंगे, ऐसे situations और आएंगे. And if you are unhappy and if you are angry, so you will get more situations so that you can be more angry and more unhappy about things. So look at what are you wanting. क्या चाहते हो लाइफ में? That is what you are going to create. Okay. Yes. So anybody who wants to share? Anybody wants to ask? कोई सवाल पूछने हो तो पूछ सकते हो. Tony, you are on silent mode today. Yeah. Receiving loud and clear. Actually, I'm still, a little Yeah. confused as to the present mental state that I am in. I am not being able to get out of my, this negativity at all. मतलब like पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है. Today was one of my worst days since many days together. So you are having a breakdown. That's fine. So just acknowledge I am having a breakdown today, and I am fine. Breakdown होना normal है. गाड़ी चलाओगे तो कभी ना कभी गाड़ी टूटती फूटती रहती है ना. तो ब्रेकडाउन हुआ है, इसमें तो परेशान होने की क्या बात है. सारे लोगों का ब्रेकडाउन होता है. Okay. Yeah. So first of all, don't beat yourself up. Okay. Okay. आज का दिन खराब गया, कोई बात नहीं, कल का दिन बहुत बढ़िया होगा. कल सुबह उठोगे आप 4 बजे, आप जिंदा हो, हाथ पैर सही सलामत हैं, खाना वाना मिल रहा है, एक घर है, तो you are happy. So you should be happy for that. Find out there are some things for which you can be always happy. Okay. जितना मर्जी खराब सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ तो है, सांसें चल रही हैं, you should be grateful to that. Yeah, that's yeah. Good. So you have a lot of things to celebrate and be happy about. Number 1. Okay. Number 2. Number 2. Now see what is the breakdown. Breakdown है क्या? किसी ने झगड़ा हो गया, किसी ने बात नहीं की, सर्वाइवल इशू है, खाना मिल रहा है, पहले तो देखो सर्वाइवल इशू है कि नहीं, बॉडी सही सलामत है, बिल्कुल सही है, सांस चल रही है, बिल्कुल सही है, खाना मिल रहा है, बिल्कुल सही है, घर में हूँ, बिल्कुल सही है, सेफ हूँ, रात को सोने लायक बेड है, बिल्कुल है, तो यूर सर्वाइवल इज टेकन केयर ऑफ. कल सुबह तक जिंदा रहोगे. नाउ कैन यू बी हैप्पी अबाउट इट? सो गो बाय स्टेप. उसके बाद देखो किसने क्या कहा. एक बंदे ने अगर खराब कर दिया, उसको साइड में क्वारंटाइन कर दो उसे, फिलहाल अभी दिमाग में नहीं लाना उसे. उसको हटाओ साइड से. जो बाकी लोग हैं, जो see there are different roles you play. Sorry Tony, I am cutting you short because there are some things which you need to get it from me in the way I am telling you. Okay. Yeah. मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ अभी. Okay. You need to understand I am a soul and I play many roles in my life. Okay. तो मैं एक soul हूँ, मैं बहुत सारे roles play कर रहा हूँ. कौन से role play कर रहा हूँ? I am my father. Okay. So in relationship to my son, I am playing the role of a father.
here I'm playing the role of a trainer. So I have some participants, or when I'm talking to healies, and I'm a healer. So I have a role of a healer, I have a role of a trainer, I have a role of a husband, I have a role of a father, I have a role of a brother, I have a role of a neighbor, I have a role of a, so you can understand what I'm trying to say. ठीक है, मैं बीच में हूँ, मेरे चारों तरफ मेरे लाइफ के रोल्स हैं, maybe say 10 roles. Okay, so you can identify the 10 roles in your life, right? रिलेशनशिप में भी आपके बहुत सारे रोल्स होंगे जो आप काम करें. ऑफिस में हैं तो आप जूनियर हैं, सीनियर हैं. ओके, तो आप एक चेन ऑफ स्कूल्स रन कर रहे हैं तो यू आर द प्रिंसिपल और यू आर द हेड ऑफ दैट, तो दैट इज फाइन. खानदान अपने परिवार के मुखिया हो तो एक और रोल है आपका. तो अलग अलग रोल्स हैं आपके. ओके, अब आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो इमोशन हैं, वो हर रोल में अलग अलग होंगे. बिकॉज योर थॉट्स, योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस एज ए हस्बैंड विल बी वेरी डिफरेंट टू योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस एज ए फ्रेंड. Somebody else, correct? So you are playing different roles. It's like Amitabh Bachchan playing 10 different roles in 10 different movies. तो उसके हर इमोशन, हर रोल में अलग इमोशन होगा. कहीं में वो कॉमेडी कर रहा होगा, कहीं में वो एंगर होगा, एंग्री यंग मैन होगा, कहीं वो पुलिस कमिश्नर होगा, कहीं वो खुद डॉन होगा. तो आप हर रोल में अलग अलग आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं. रोल को मिक्स नहीं करना है. ओके, यहाँ पे आप अभी एक ट्रेनी हो, एक हीली हो, यहाँ पे कोई इश्यू है, अपसेट है, तो मेरे साथ शेयर करोगे, यहीं खत्म करोगे. I hope that is not the case, right? So you are happy here. So be happy, bring a smile on, and attend the program. You will get the value of this program right now. हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे है तो मुझसे शेयर करो, कंप्लीट करो, हाँ, और यहाँ पे सॉल्व करो. अगर प्रॉब्लम फ्रेंड के साथ है तो उस फ्रेंड के पास जाओ, बात करो, या उसको पोस्टपोन करो, कल सुबह मिलेंगे उससे और ये सॉर्ट आउट कर लूंगा. तो उस फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम तब आएगी. डोंट गेट इनटू द, एक्टर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रोल में प्रॉब्लम हो सकती है. एक रोल खराब चल रहा है अभी, मे बी यू हैड अ बिग क्वारल विथ योर मे बी सन, ओके, और मे बी विथ योर वाइफ. तो अभी वो हस्बैंड और फादर वाला रोल जो है उसको क्वारंटाइन कर दो, बाद में देखते हैं उसे. ओके, उसको बाद में हैंडल करते हैं. बाकी जो चीजें हैं उससे क्या मैं खुश हो सकता हूँ? नंबर 1, राइट? हेल्थ सही चल रही है, हेल्थ में कौन है, ट्रेनर आ रहा है या जो भी आ रहा है, आप हेल्थ रिलेटेड जो लोग हैं वो सारे ठीक चल रहे हैं. सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. बी ग्रेटफुल टू गॉड. यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, डूइंग योर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मेडिटेशन कर रहे हो अपना, प्राणायाम कर रहे हो अपना, हीलिंग कर रहे हो अपना, तो दैट एस्पेक्ट इज टेकन केयर ऑफ. So your spiritual work is happening, so you are grateful and you are happy about it. Good. I'm just telling you कहाँ पे आपको टिक लगाना है. तो ये रोल पे टिक है, ये पे टिक है, 2 में सिर्फ क्रॉस है, बाद में देखते हैं. पहले बाकी जो टिक है वो तो मैं देख लूं, जो मेरे एरियाज चल रहे हैं लाइफ में. तो जो एरियाज लाइफ में चल रहे हैं वहां पे हैप्पीनेस आ सकती है, वहां स्माइल आ सकती है, वहां ग्रेटिट्यूड आ सकता है. ग्रेट, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो, पावर आ गई. अब नाउ हैंडल दोस 2 सिचुएशंस. प्लान तरीके से उसको अप्रोच करो. ओके, बेटे के साथ मीटिंग करता हूँ, बैठता हूँ, 1-to-1 डिस्कशन करता हूँ, क्या इशू है उसको, किस बात पे मैंने बोला, क्या गुस्सा आया उसे, उसने क्या बोला, मुझे कब गुस्सा आया, लेट्स हैंडल इट. क्या चाहिए उसे, यू नो, व्हाटएवर एडवाइस देनी है, कैश क्रंच है, फाइनेंशियल इशू है, जो भी है वो वहाँ पे डील करोगे आप. करेक्ट? लाइक दैट यू हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन. आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ और हाउ आई हैंडल इट. पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो पड़ोसी के साथ हैंडल करोगे ना उसे. उसको आप अपने फ्रेंड के साथ या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में थोड़ी ना लेके आओगे इमोशन को. Okay, so you need to understand and stop saying I just told you. Language कैसी होनी चाहिए हमारी? Positive and positive. और एक और चीज बोली थी, प्रेजेंट में मैं कब कल क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम. मुझे मालूम है I am happy right now, I am clear, I am a wise soul, okay, I am a powerful soul, I am a peaceful soul, I am a divine soul. ये am में हूँ, अभी हूँ, right now. I am a wise soul. I am taking perfect decisions. Divine guidance is with me. Let's see what is the situation. Situation को ध्यान से देखो, analyze करो, and take a call. That is how you need to move on. Language is very, very important. Let me tell you that. Language tells me what, or language tells you what is going on in your subconscious mind. तो एक छोटी सी इंसाइट जो मेरे को आई, मेरी अपनी स्टडी जो मैं कर रहा था, जो हम बोलते हैं स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी जो बोलते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि मैं अक्सर काफी चीजें बोल रहा हूँ कि ये चीजें हो जाएंगी. ओके, एफर्ट्स मैंने कर दिए हैं, रिजल्ट्स आ जाएंगे. तो रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वो फ्यूचर में ही रहेगा ना. देन आई हैव टू करेक्ट माय स्टेटमेंट. जो अफर्मेशन सही कर रहा था लेकिन नॉर्मल टोन में जब मैं बात कर रहा हूँ, इट इज गोइंग इनटू द फ्यूचर सेंटेंस. सो आई सेड ओके, आई एम डूइंग माय एफर्ट्स, मेकिंग माय एफर्ट्स, एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग. Results have come.
तो आपके नॉर्मल टोन में भी जब आप बात कर रहे हो, यू हैव टू यूज वर्ड्स व्हिच आर पॉजिटिव एंड व्हिच इज इन प्रेजेंट टेंस एंड लिव द मोमेंट राइट नाउ. आज ही रमेश बहुत बढ़िया एक मैसेज डाला था, लिविंग इन द प्रेजेंट राइट नाउ. हम अक्सर फ्यूचर में घूमते रहते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में लाइफ नहीं चल रही है, लाइफ प्रेजेंट में चल रही है. राइट टोनी? सो मैंने बहुत बड़ा एक डोज दे दिया है आपको, तो जस्ट टेक दैट राइट नाउ, लेट इट गो इनटू द माइंड. एंड मीनवाइल Shuchi, you want to share something? Go ahead. Yeah, so just adding up, I think I was also very inquisitive asking Tony ji because he was never like this. तो मैं को बार बार हो रहा था पूछने का कि what happened to him, why you looking like this today? So Tony ji, बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगी, मैं बहुत like I'm very new into this journey, but till 2019 मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी, हर चीज पे रोती थी और मुझे ऐसा लगता था आई वाज द अनफेवर्ड वन. मुझे कुछ नहीं मिला, लाइक यू नो मुझे I was crying for my job, I was crying for my relationship, I was crying for my people, and then the change in the country, मैं एक US shift हो गई थी, तो I was missing my people, my country, and I was in a total depression stage. But एक दिन just I got and I was crying in front of my Guruji and my मंदिर में बैठ के मैं बहुत रो रही थी कि मुझे ये लाइफ क्यों दी है. मेरे को बचपन से I'm just craving for love, I'm craving for relationship, I'm craving for success. मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? I'm at the mid of my age और पता नहीं आगे कितनी जिंदगी है, मैं कब वो टाइम देखूंगी जब everybody is loving me. And उस दिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला. अगले दिन मुझे गुरुजी ने एक सेवा दी कि मेरे को एक बंदे को ड्रॉप करना था टू द कैंसर हॉस्पिटल. पूरे रास्ते उनकी जब बातें सुनी मैंने, एंड जब मेरे को पता चला ही डिडंट इवन हैव मनी टू गेट यू नो अपनी मेडिकेशन और उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है. ऑल थ्रू व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, उसकी फैमिली नहीं है, नोबडी इज सपोर्टिंग हिम, नोबडी इज देयर टू कुक फॉर हिम. एंड मुझे ऐसा लगा आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड. हम कई बार टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें जो चीजें मिलती है हम उनको देखते नहीं है. And I still remember that day, that was September 2019. मैं तब से every day, मैं दिन में पता नहीं कितनी बार thanks करती हूँ. Thank you, हम जी रहे हैं. Thank you, I have a family, I have kids, I have my husband. Thank you, मेरे को घर है, मेरे पास घर है, मैं ठंड में बाहर नहीं हूँ. Thank you, all my organs are working properly. And since then, जब से मैंने thanks बोलना शुरू किया है और मैंने अपनी पुरानी जितनी बार मैंने शिकायतें की थी God से कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मैंने उनको सॉरी बोलना शुरू किया अपने आप से, सेंडिंग सॉरीज टू देम कि टू माय पेरेंट्स, टू माय ऑल द पीपल जिनसे मेरे को कंप्लेंट थी कि मैं कहती थी वो मुझे प्यार नहीं करते. मैंने उनको मन ही मन हमेशा सॉरी बोलना भेजा कि आई एम सो सॉरी, यू वर देयर इन माय लाइफ. इवन दो मेरे को लगता था कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, बट ठीक है, दे वर देयर इन माय लाइफ. मेरे पास वो रिलेशनशिप है तो सही ना, कम से कम मैं कह सकती हूँ यस आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अ फैमिली, आई हैव होम, आई हैव थिंग्स टू ईट, मैं जो खाना चाहती हूँ मैं खा रही हूँ. तब से सीरियसली मुझे पीछा कुछ याद नहीं आता है. मेरे को सिर्फ हर रोज सुबह उठ के यही लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड. मैं सुबह उठ के देख रही हूँ, ये सुबह देख रही हूँ, यही बहुत बड़ी चीज है. एंड आई थिंक हम सच में वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हमें बहुत कुछ मिला है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं. So, and उस दिन से मैं seriously बोल रही हूँ, मैं I lost my mom in my childhood और मुझे खाने का बहुत शौक है, especially sweets. उस दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे जो खाने का मन करता है, because I always used to complain मेरी माँ क्यों छीन ली मुझसे जल्दी, the kind of love mother gives nobody else gives. So मुझे हमेशा लगता था and I was always craving for that mom's love. और मुझे मेरे भगवान ने उस दिन से ऐसे सरो के रखा है कि मुझे जो खाने का मन करता है वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है. कोई मेरे लिए ले आता है, स्पेशली स्वीट्स लाइक यूएस में गाजर का हलवा किसको मिल सकता है, बट मुझे मिल जाता है. अगर मुझे क्रेविंग है, मुझे खीर खाने का मन करता है, मुझे खीर खिला देते हैं कहीं से भी कुछ ना कुछ करके मेरे पास. एंड दैट्स माय मॉम्स लव सेंडिंग फ्रॉम हिम, एंड दैट्स बिकॉज आई स्टार्टेड थैंकिंग हिम. तो आई थिंक सिचुएशंस बहुत खराब होती है एंड उस दिन से मैं हमेशा यही कहती हूँ दिस इज अ न्यू लाइफ. 2019 September was a new life for me. और उस दिन से मैं ये कहती हूँ मुझे नया जीवन मिला और ये जीवन बस I have to be happy and blessed and thankful for this new life.
क्योंकि मैं तो चली गई थी, खत्म हो गई थी उस लाइफ में रोते 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 रोते, और अब मैं बहुत खुश रहती हूँ एंड हैव सीन मेरी फैमिली अब खुश रहती है, घर में सिचुएशंस ठीक रहती है, सब खुश रहते हैं। सो और अगर कुछ नहीं मिल रहा है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, उसमें भी देयर विल बी समथिंग गुड फॉर मी। मुझे शायद किसी बड़े खतरे से, जैसे अभी भी मुझे लगता है कि एवरीथिंग इट्स ओनली माय जॉब पार्ट व्हिच आई एम ऑलवेज यू नो कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। इट्स बीन 3 years इन यूएस एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मुझे नहीं मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ भला है कि मेरे को वो घर पे रखना चाहते हैं, या यू नो समथिंग गुड, कुछ ना कुछ होगा। और अगर जब होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि उनकी प्लानिंग हमेशा हमारे लिए अच्छी ही होती है। वी हैव टू जस्ट बिलीव दैट कि वो जो हमारे लिए प्लान करेंगे वो अच्छा ही होगा, और जो हम भुगत रहे हैं, जो गलत हो रहा है, वो हम कर आए हैं। सो जैसा पेपर दिया है वैसी मार्क्स मिलेंगे, तो पढ़ाई और करनी है और पढ़ाई करने के लिए हम सुबह यहाँ पे मिल जाते हैं। Wonderful, absolutely brilliant, Shuchi. Thank you very much, Shuchi, for sharing such a lovely experience from your life. I think it has really given me a a wake up call rather. Thank you very much. God bless you. And Tony ji, we people look up to you. आप हंसते हुए दिखते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो आज आप एनर्जी कम दे रहे हो। Okay, I'll make sure that I keep smiling. All this group, हम सब हंसते हुए दिखते हैं हमें, और मेरी तो सुबह होती है, तो मुझे आप सब लोगों से एनर्जी मिलती है। Oh, thank you so much. God bless you again. And this again is this is a blessed moment. अगर हम किसी को थोड़ी सी एनर्जी भी दे सकते हैं, तो that's what. Yeah, thank you, Shuchi. Thank you so much. God bless you, really. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Wonderful, Shuchi. Great sharing. Very powerful. Very good. Very powerful. Yes, good. So, Tony, a lot of insights for you there. Keep thinking about it. Keep thinking about it. ठीक है ना? And okay, anyone else who wants to share? This was absolutely mind blowing, like a Sachin Tendulkar innings, huh? Sachin Tendulkar innings, double centuries, just like that. Wonderful. It came like full on drive. Yeah, it's absolutely great, wonderful. The kind of spiritual journey that you are experiencing is very, very powerful. And let me give you an insight. Think about it. There are some things that are not happening, just like you shared, right? Looking for a job. So just know that job milna is a need of the mind. Divine is planning something for your soul. Soul की need क्या है? Spiritual growth. तो अभी आपको spiritual growth करनी है. Yeah. Go do that. When you are ready for that, you will get a wonderful job. So in 2020 when everybody was crying कि ये साल बहुत बुरा गया, मैं कहती हूँ मैं जितना connect हुई हूँ to that divine power in 2020 was the year of transformation for me. तो मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे लिए बुरा गया. It was a year of transformation for me. Absolutely. So I've been connected with the God, with the karma में, क्योंकि मैं पूरा दिन because job नहीं है तो मैं सिर्फ शिवानी जी को सुन रही हूँ, law of attraction videos देख रही हूँ. So मेरा पूरा मैंने तो बहुत गेन किया मैंने. So yeah, absolutely. That was a year full of. Right now, the need of the soul is superseding the need of the mind. That's it. Yes. Correct? And you are taken care of. Divine is always taking care of you. So don't worry. Everything is planned. This divine ने सब plan किया हुआ है. When the right time comes, you will absolutely. I think the time has come. And stop saying the time will come. Time has come. Language change कीजिए. Time will come बोलने से नहीं आएगा. वो time जो चाहिए. Time has come. Time is coming is the right way. Okay, ये मैंने भी अभी भी realization में आया है मेरे, तो मैं बिल्कुल अपने आप को और लोगों को connect करता रहता हूँ. Will, shall use करना बंद कर दो. Is, am, coming. That's it. Is happening. Has happened. That's it. And no never भी use नहीं करना. क्या करना है उसके बारे में बोलना. All right, brilliant, Shuchi. Wonderful. Once again, congrats. Thank you. All right, who else wants to go ahead? Anybody who wants to share? Anybody who wants to share? किसी और को कोई insights हैं, कोई sharing करनी है, कोई सवाल पूछने हैं? You can जी, go ahead. एक बात बोलूं मैं आपको, टोनी जी. हाँ जी. आप कहते हैं ना कि जब सवेरा होता है ना, तो उससे पहले सबसे ज्यादा डार्केस्ट टाइम ऑफ लाइफ आता है. इसका मतलब आपका एक बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है. आप कह रहे ना आज आपका वर्स्ट डे था, कल आपका बेस्ट डे होगा.
Thank you so much. Thank you, Preeti. Thank you so much. Thank you. आपका बेस्ट टाइम शुरू हो चुका है. बेस्ट टाइम शुरू हो गया. कल नहीं होगा, हो चुका है. हो चुका है. It has happened. Okay, your best time has happened, and you have to understand. See, transformation happens in a second. एक सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और वो एक मोमेंट ही होता है. उसके ऊपर बिल्डअप करने में टाइम लगता है. करेक्ट. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट वन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग काइंड ऑफ अ थिंग. So don't have to, उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़े प्रभु जी आके आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे, आपको दर्शन देंगे. नहीं, it is just a very small insight. उस insight को पकड़ना है, wow kind के feeling आती है, and that's it. And that is the enlightenment that you're looking for. So you don't have to worry. Things can change absolutely overnight. आप रात को आज सोएंगे, सुबह उठेंगे, you will be absolutely transformed. नए insights आ गए होंगे. Life will be absolutely on perfect. So start believing in it. Start having faith in the divine. And by the way, I've not spoken to you today. I will call you tomorrow. So schedule a call tomorrow, possibly around 11 o'clock, Tony, and we will have a discussion. Okay? Yeah. Okay. So 2 दिन से बात नहीं हुई हमारी, तो I'm not aware of what exactly has happened. I will not ask now. We will connect tomorrow at 11 o'clock. And but आपको जो मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, सिर्फ 2 ही वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं. Present tense and positive language. ये 2 चीजों पे काम करो, and we will talk tomorrow again. Okay. Okay. Great. Wonderful. So who else, and how much time do we have? We have some time more. Okay. So we can take a few more questions, and we can take a few more sharing. Anybody who wants to share? Yes, Kavan, go ahead. Kavan, you are on the mute. Yes, sir. हमारा बॉडी के किसी पार्ट में अगर क्रॉनिक पेन है हमको बहुत साल से, तो डू वी नीड टू अफर्म आई एम गेटिंग हील्ड और आई एम ऑलरेडी हील्ड, दोनों बोल सकते हैं बिकॉज इट्स प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. But you have to believe in it. Okay. See, you have to go by the basic belief system. So if you're taking a medicine, you're doing the medical support, आप ले रहे हो या आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको हीलिंग एनर्जीज मिल रही हैं, then you can say I'm receiving the healing energies and I am being healed of the pain. Suppose pain है knees में, okay? तो अब अलग-अलग meditations आपको मालूम ही है, YouTube में भी डाले हुए हमने पहले भी किए हुए हैं. तो आप उसमें healing energies को request कर रहे हैं. Healing energies are coming down, entering your body and cleaning up. आपका वो pain को wash away करके निकल जा रहे हैं. And आपका pain खत्म हो गया है, आप ये visualize कर रहे हो, okay? So you can say I'm getting healed of the pain. And after that, in the meditation, you can say the pain has gone and I am healed, whole and complete. तो ये बिल्कुल सही है, perfect है. क्यों? क्योंकि उस समय एनर्जी आ रही है, आप विजुलाइज कर रहे हो और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ कर रहे हो. ओके, बट यू हैव टू बी इन दैट प्रोसेस, हैव दैट बिलीफ एंड देन से दैट. और विजुलाइज करना है साथ में कि पेन खत्म हो रहा है. लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं यार पेन तो जा नहीं रहा है, फिर भी आप आधे मन से कर रहे हो, तो वो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे. ओके सर. यू हैव टू हैव फुल फेथ एंड फुल बिलीफ, देन इट विल गो. फिर वो चाहे कैंसरस ही ट्यूमर ही क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा. माइंड में बहुत पावर है, उस पावर को सही यूज करना है बस. ओके, ऑलराइट, गुड. सो एनीथिंग एल्स, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, एनीबॉडी हु वांट्स टू गो अहेड? सब एनलाइटन हो गए? Okay, so let me ask in that case. Okay, so suppose you have a situation जो आपको लिमिट कर रहा है. Suppose आप you are feeling very helpless out there. कोई सिचुएशन आ सकती है ऐसी जहाँ पे आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, डेस्परेट हो, फ्रस्ट्रेशन आ रही है. ओके, तो ऐसी सिचुएशन आई थी. And maybe anything that you can pick up. Maybe one Mr. X is there with whom he is creating a lot of problems in your life. Okay, he or she. तो एक है X person है, वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ऑलराइट, कैसे उस पर अप्रोच करोगे? कोई भी X कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, नीबर, बॉस, चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चे, अपने बच्चे, कोई भी हो सकते हैं. तो रिलेशनशिप इशू ले रहा हूं मैं. एक रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही है एक इंसान के साथ. हाउ डू यू गो अबाउट द होल सिचुएशन?
हाउ वुड यू गो अहेड? क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले बिलीफ सिस्टम से शुरू होता है हमारा, ठीक है? कोई भी आप एक्शन प्लान करोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, यू हैव टू गो बाय दैट. अगर आप किसी सिचुएशन को एनालाइज करोगे, फर्स्ट सी व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम अबाउट दैट, देन सी व्हाट इज द प्रपोज्ड एक्शन प्लान, और उस एक्शन प्लान का रिजल्ट क्या आएगा, पॉसिबल रिजल्ट क्या आएगा. दिस इज हाउ यू एक्चुअली सी, एंड देन यू गो टेक ए कॉन्शियस डिसीजन. तो डिसीजन कॉन्शियस लेना है, इंपल्सिव नहीं लेना है. तो पहले सिचुएशन आई है, सिचुएशन को समझना है, उसमें आपका अपना परसेप्शन, अपना बिलीफ सिस्टम चेक करना है, देन प्लान एन एक्शन एंड देन गो फॉर अ रिजल्ट. ओके, तो नाउ टेल मी हाउ डू यू गो अबाउट इट. तो सबसे पहले सिचुएशन आई है. यस शुचि, यू रेज योर हैंड, गो अहेड. Okay, so this is something which I've started अभी incorporate करना शुरू किया. So whenever there is somebody who's going differently or who's creating problems for us, we first have to, in our belief system as you mentioned, हमें ये सोचना है कि that's a soul first of all. वो कोई इंसान नहीं है. That's a soul and I'm a soul. And हम दोनों का कुछ रिलेशन पुराना है. Like मैंने उससे कोई उधार लिया था, वो मांगने आया है, और ऑब्वियसली मांगने आया है तो मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मेरे पास से कुछ जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये फिल्टर लगा लेते हैं कि दिस इज समथिंग गोइंग पीछे से चल के आ रहा है, एंड ही इज अ सोल, ही इज नॉट मिस्टर एक्स और एनीबडी रिलेटेड टू मी, एंड आई एम द सोल, आई एम ऑल्सो नॉट द पर्सन जो उसके सामने खड़ा है. सो ये बिलीफ में लाना बहुत बड़ी एक चीज है जिसपे मैं भी काम कर रही हूँ. और जब हम ये काम करना शुरू करते हैं, so I think हमारे actions अपने आप उसके हिसाब से होंगे, and we start giving blessings to him. Okay, we forgive you, या okay, bless you, I know you are in pain. और वो जब भी हमको चला रहा है, हमारे ऊपर चिल्ला रहा है या कुछ भी कर रहा है, अगर हम अंदर अंदर से कह रहे हैं bless you, I know you are in so much of pain, you are so much of pain, तो things will getting better, क्योंकि वो हमसे reaction नहीं देख रहा है. और जब हम react नहीं करेंगे, चीजें अपने आप चीज ठीक होंगी. I've started incorporating this and I'm seeing differences in two of the people जो actually मैं हमारी मतलब it's not, I will not say problematic, but I was just experimenting this thing on them कि जब भी अब वो फोन करके मुझे कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं यहाँ से सिर्फ कहती हूँ oh my God, you are so much in pain, I bless you, may the divine bless you. And क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही होती हूँ, so you know धीरे धीरे and after second call उनके words मेरे लिए चेंज होने शुरू हो गए हैं. So I've just started experimenting this and मुझे इसमें अच्छे results आ रहे हैं. Absolutely brilliant and absolutely on the dot. Brilliant, perfect. यही करना है, यही approach है. So first you have to understand and appreciate that I am a soul on a long journey. जो सामने वाला है वो भी एक आत्मा है, लंबी यात्रा पे है, उसके अपने संस्कार हैं, मेरे अपने संस्कार हैं. वो पेन में है और इसलिए वो अपने संस्कार के थ्रू जो भी बिहेवियर दिखा रहा है, he is reflecting his संस्कार. So let me not pick up his संस्कार, I will go by my संस्कार. मेरे संस्कार क्या हैं? मेरे जो सतोगुणी आत्मा के जो संस्कार हैं, तो लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, मैं यहाँ से अगर ऑपरेट करूंगा और उनको ब्लेसिंग्स दूंगा, इट विल बी ए परफेक्ट इंटरेक्शन. तो उनका एनर्जी लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा. So that is exactly what you have done. So wonderful and brilliant. So that is the first belief. Yeah, good. To add कि अगर हम ये सोच के करें कि हमने उससे कोई उधार लिया था, वो उधार मांगने आया है, अगर मैंने आज फिर से कुछ बोल दिया तो मेरा उधार बढ़ जाएगा, so मुझे और देना पड़ेगा. So you know अगर हम ये छोटी छोटी थॉट्स लाके कि you know वो मुझसे कुछ लेने आए, मेरा उधार बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली हम कभी कुछ अपने ऊपर कर्जा रखना नहीं चाहते, तो हम चुप ही रहेंगे. वो मॉनेटरी अपने ऊपर एक प्रेशर डाल लो कि नहीं, मेरे को नहीं अपना बढ़ाना कर्जा, so चुप रहो. That's the best. I think चुप रहना and be calm रहना is the best thing. Absolutely right. And in fact, since all of you are talking of Shivani's video, so I'll just pick up something from her only. Because second, इसका step क्या है? पहला तो ये हो गया belief system. दूसरा, एक्शन में जब आप आ रहे हो, तो एक्शन में कैसा आपको करना है? See, she always says कि अगर कोई हमको बुरा बोल रहा है या कोई बुरा एक्शन किया है, he is sending us black balls. That is the definition she used. White balls, you should send the white balls. जैसे ही वो ब्लैक बॉल भेजे, वो इसलिए समझना है कि मैंने पहले ब्लैक बॉल भेजी थी, इसलिए ब्लैक बॉल आ रही है, मेरे को व्हाइट बॉल भेजनी है. कब तक? जब तक वहां से व्हाइट नहीं आया तब तक व्हाइट बॉल भेजिए, उसके बाद भी व्हाइट ही भेजनी है. बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स. व्हेन यू से आई हैव लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये सारे व्हाइट बॉल्स हैं. बल्कि मैं तो उसको और थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ, व्हाइट एंड गोल्डन बना देता हूँ. गोल्डन एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी.
तो मैं व्हाइट एंड Yeah. गोल्डन बॉल्स रखता हूँ, लाइक इट इज लाइक एंड एक्चुअली विजुअलाइज, जब पहले मैं करता था, जब मैंने शुरू में 4 साल पहले जब मैंने वीडियोस देखने शुरू किए थे, तो आई यूज्ड टू विजुअलाइज, जैसे अर्जुन होता है ना अपने तीर निकालता था, तो लाइक दैट आई विल टेक आउट द गोल्डन बॉल, लाइक हैंड ग्रेनेड्स, एंड आई कीप थ्रोइंग दैट, सो निकाला और फेंका. तो आप तो बन गए ना मुकेश अंबानी. So it is like basically like sending that white ball or golden ball to everybody, and एक के साथ नहीं, फिर आप मेरे साथ सारे आ जाओ, as it's like Abhimanyu sitting in the between, and all the other warriors are fighting against him. So you can come and do that. I'll keep throwing the golden balls and the white ball, and then I actually visualize कि वो सारे like are smiling and having a handshake, and then actually the Abhimanyu has become Arjuna or whatever you can visualize, कुछ भी visualize करो. And then your divine form में आप उनके साथ जा रहे हो, और they are following you, so you become a leader for them. Yeah. So somebody who is against you can become a follower. That is the kind of imagination and visualization I would do in my exercises. Of course, fundamental वही था जो शिवानी जी बताती हैं कि वहां से black ball आ रही है, आपको white ball भेजनी है, तो ये है action. किसी भी तरीके से आप क्या बोल रहे हो डिपेंड नहीं करता, इंटेंशन और एनर्जी क्या है, व्हाइट बॉल की है, गोल्डन बॉल की है, वहां से जो मर्जी आए, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज देयर संस्कार. आई विल नॉट कॉपी देम, आई विल स्टिक टू माय ओन संस्कार्स. तो मैं गोल्डन एनर्जी भेजूंगा, व्हाइट एनर्जी भेजूंगा, तो एक्शन आ गया, रिजल्ट तो आना ही है. फिर वो जब मैंने मान लिया कि वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, रिलेशनशिप हमारी सिर्फ पहले का कुछ था, उसको सीधा करना है. सिर्फ ब्लैक बॉल मैंने पहले भेजी थी, इसलिए वो ब्लैक बॉल दे रहे हैं. अब मैं गोल्डन बॉल भेज रहा हूँ, तो वो गोल्डन बॉल जब तक दें या ना दें, आई एम नॉट बॉदर्ड, मैंने गोल्ड ही भेजना है, क्योंकि मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगा. तो कर्म मेरा सही हो गया तो मेरा भाग्य अच्छा होना ही है, हो गया है, रादर होना ही है, नहीं हो गया है. So that is how it is going to work. So this is the perfect solution for any situation जो मर्जी हो. तो इसको याद रखने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको एक एक्रोनिम दिया हुआ मैंने, बार बड़ा अच्छा लगता है ना सबको, BAR. तो it is belief, action and result. Okay. तो BAR, remember that, बड़ा एक छोटा सा एक्रोनिम है, ब्रश करते समय भी याद आ जाता है, तो पार्टी करनी हो तो भी याद आ जाता है, राइट. सो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर बिलीफ, एक्शन एंड रिजल्ट. बिलीफ क्या है, आई एम ए सोल, ही इज अ सोल. एक्शन क्या है, गोल्डन बॉल. एक वर्ड याद रखो, सिर्फ पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, गोल्डन बॉल बोलते याद आ जाता है. तो वहां से कोई चलाना शुरू कर देगा, आपको सोल है, गोल्डन बॉल चाहिए, भेजो, टेक आउट द गोल्डन बॉल, थ्रो, दैट इज फास्ट. एंड रिजल्ट तो आने ही है, तो रिजल्ट की परवाह वैसे भी मत करो, क्योंकि डिवाइन विल टेक केयर, डिवाइन मैजिक बी डन, डिवाइन विल बी डन, कुछ भी बोल के आप निकल लो. तो फोन कॉल पे हो, जूम कॉल पे हो, जिस मर्जी कॉल पे हो, थॉट में हो, this is what is actually the way to handle the people, right? All right, so with this I think we had a wonderful, great discussion today, and excellent, lot of insights for people and lot of insights for me also, and very impressed by the progress of Shuchi, Preeti and well, Preeti ne share nahi kiya, but I know she has also made a lot of progress. So, and Tony is making some spiritual transformation, is a blissful state में है, अभी blissful state में है, तो transformation हो गई है, just manifestation. कल सुबह तक, Tony, you have time till 11 o'clock. Tomorrow 11 o'clock you are going to be transformed, and you are transformed, and 11 o'clock we are going to manifest that. Okay. Yeah. Okay. All right. Good. Great. So wonderful. Thank you, everybody. And I think we have crossed the time limit. It is 4 minutes over time. So we will stop the meetings for today. Any last sentence, statement, or something you want to say? Summarization के लिए कोई कुछ कहना चाहता है तो? I just want to thank Shuchi for the very powerful sharing that she did. It has really made a lot of difference to my psyche of whatever I was having right now in my head. But now I think I have really concluded that what exactly needs to be, my action plan, वो मुझे समझ में आ गया है. टोनी जी, आपके फेस की स्माइल ही चेंज हो गई है after Shuchi's session. Your state is looking very beautiful. Yeah, Tony ji, बस ये याद रखिए, you are an energy meter for everybody. So, okay. तो आप positive रहेंगे तो सब positive रहेंगे. Thank you. So you have to be positive for others. Thank you. All right, so great participation. Thank you, Shuchi. Thank you, Preeti. Thank you, Vishakha ji. Thank you, Kavan. Okay, thank you, Tony. Thank you. Thank you, Smriti. Thank you, Ramesh ji. Thank you, sir. All right, so wonderful. Enjoy your day, enjoy your week, and we'll meet again next week. Yep.
Next Wednesday, 8 o'clock, with lot more energy and lot more transformation. Yes. All right. Enjoy your day. Enjoy your week. Okay. Namaskar. Thank you. Okay, Bye bye. sir. Good night. Namaste. It was a great session. Bye bye.